since the start of the war 20 days ago. We are winning, and Iran is being decimated. In Rising Line, we destroyed missiles, and we destroyed a lot of the nuclear infrastructure. The American effort to open the Straits of Tiran, of the Hormuz Line. There's still more work to do, and we're going to do it. अब वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मौत की अटकलों के बीच सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान को लेकर कई बड़े दावे किए। नेतन्याहू ने कहा कि 20 दिनों की लड़ाई में अमेरिका इजरायल के हवाई हमलों के बाद ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता को खत्म कर दिया है। नेतन्याहू ने दावा किया कि 20 दिन की जंग के बाद ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और ईरान का एटमी ताकत बनने का सपना चकनाचूर हो गया है। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि इजरायल ईरान पर चौतरफ हमले कर रहा है और हम जंग जीतने वाले हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded and will be destroyed. Hundreds of their launchers have been destroyed. Their stockpiles of missiles are being hit hard, and so are the industries that produce them. That's important. In Rising Line, we destroyed missiles, and we destroyed a lot of the nuclear infrastructure. But what we're destroying now are the factories that produce the components to make these missiles and to make the nuclear weapons that they're trying to produce. We're wiping out their industrial base in a way that we didn't do before. Iran's air defenses have been rendered useless. Their navy is lying at the bottom of the sea. Today we hit the other part of their navy in the Caspian Sea. Their air force is nearly destroyed. Iran's command and control structure is in utter chaos. And I can tell you that there's still more work to do, and we're going to do it. रिफत अब्दुल्ला इस वक्त लेबनान बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रिफत, बताइए ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? देखिए, ग्राउंड पे सिचुएशन काफी टेंस है। आनंद, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस स्पॉट पे हूँ। ये बॉर्डर है, ये देख सकते हैं आप। ये जो फेंसिंग आप देख रहे हैं, ये लेबनान और इसराइल बॉर्डर की है। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे मैं हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सारा एरिया, ये जो यहाँ की इंस्टॉलेशंस है, ये इसराइली फोर्सेस के हैं। और बीच में आनंद आप देख पा रहे होंगे कि एक बॉर्डर लाइन है। ये टीन की चादरें जो लगी हुई हैं, यही बॉर्डर है। और ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ इसराइल साइड से, दोनों साइड से बॉर्डर है। लगातार यहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है, लगातार यहाँ पे रॉकेट्स और मिसाइल बरस रहे हैं। यहाँ के एक लोकल आदमी मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एरिया, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज हियर अराउंड? Now it's a situation that it's a war all around in Iran, as we know. But here on the border, it's a war with Lebanon. Okay. The army went inside Lebanon and they're bombing the terrorists. Okay. We sit here, we live here on the border, and we got shells and those small airplanes that come and bomb us. Your house was also damaged? My house was 3 days ago. Was a big bomb fell, and the window in my entrance of my house was broken. And this is the last point from Israeli side. This is the border of Lebanon now. This is Shlomi. We can go a bit further on the hill. It's my kibbutz called Hanita. Yeah. And my house is about 200 meters from the border. And I can tell you, I live on this border. I live here since 1980. Okay. I was married here.
and 4 children was born here. And in 2002, 2 terrorists came from Lebanon. And when my wife and my daughter were in the car, they killed my wife and my daughter. Your wife and your daughter was killed. One of my daughters, yes. तो आनंद ये कह रहे हैं कि इनकी वाइफ और डॉटर भी बहुत पहले मारी गई हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से इनका दावा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हम बॉर्डर लाइन पे हैं और यहाँ पे तनाव बहुत ज्यादा है और इनका घर भी जो है वो टूट गया है क्योंकि जो लगातार यहाँ पे रॉकेट्स और मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं उसकी वजह से यहाँ इस पूरे एरिया में काफी नुकसान हुआ है। लेकिन आईडीएफ जो है लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं लेबनान में काफी सारा डैमेज हुआ है। तकरीबन 900 लोग मारे गए हैं, 2000 से ज्यादा घायल हैं, एक मिलियन से ज्यादा लोग वहां पे डिस्प्लेस हुए हैं। ये इस वक्त है इस बॉर्डर एरिया की सिचुएशन। जी धन्यवाद। लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से वो कह रहे थे कि शॉर्ट एयरक्राफ्ट्स भी आते हैं जो यहाँ पर बम बरसा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहाँ से जब आए थे आतंकी तो उनकी बेटी और बीवी को 2002 में उन्होंने मार गिराया था। लेकिन एक और मैं आपसे बात पूछूंगा, आप हाइफा भी पहुंचे थे, वहां पर हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से क्या कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स हो रहे हैं या हिजबुल्लाह अपनी कार्रवाई कर रहा है इजरायल के खिलाफ, ईरान अपनी कार्रवाई कर रहा है? देखिए जो रिफाइनरी पे हमला हुआ है और इसराइल का कहना है कि वो ईरान की तरफ से मिसाइल आया था और उसी का एक हिस्सा रिफाइनरी पे गिरा था और वो सबसे बड़ी रिफाइनरी है। आनंद मैं आपको बता दूं कि 50 से 60% जो डिमांड है उसी रिफाइनरी से पूरी होती है, गैस की, पेट्रोल की, डीजल की और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। यानी एक बड़ा अटैक था। हालांकि इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि ज्यादा रिफाइनरी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन धुएं के गुबार इर्द गिर्द थे और न्यूज 18 इंडिया की टीम बराबर ग्राउंड जीरो पे पहुंची और उसके बाद हम आगे बढ़े और इस वक्त हम बराबर लेबनान के बॉर्डर पे हैं और यहाँ पे भी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे 2 धमाके हुए, सायरन भी बजी। अभी कितना नुकसान उससे हुआ है क्या पाना मुश्किल है, लेकिन इस एरिया में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं जबकि बाकी जो एरियाज हैं वहां से ईरान के मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। जी धन्यवाद। आप सेफ रहिए। रिफत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया रिपोर्ट्स आप न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए वहां से लेकर आ रहे हैं जान जोखिम में डालकर। देखिए व्यूअर्स, मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बड़ी अफवाह तेजी से फैल रही थी। दावा यह किया जा रहा था कि उनकी मृत्यु हो गई और वो भी आज से 5-7 दिन पहले। लेकिन अब खुद बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए हैं और उन्होंने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इस जंग में अब ईरान की हार लगभग तय हो चुकी है। झूठे साबित हुए सारे दावे। अफवाहों का हुआ अंत, कैमरे के सामने आए नेतन्याहू। I'm alive, and you're all witnesses. मैं जिंदा हूं। मिडिल ईस्ट इस वक्त भीषण टकराव के दौर से गुजर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक और सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। जंग के इसी माहौल में सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज अफवाह फैलाई गई कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं। कुछ पोस्ट में तो ये तक दावा किया गया कि ईरान ने उन्हें निशाना बनाया है। लेकिन इन दावों के बीच अचानक नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आता है और सारी अफवाहों पर ब्रेक लग जाता है। जंग के बीच मौत की खबर, सामने आ गए नेतन्याहू। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी के साथ एक इमारत में चलते हुए नेतन्याहू कैमरे के सामने आते हैं और सीधे सीधे उन अफवाहों को चुनौती देते हैं जो उनकी मौत की बात कर रही थी। इससे पहले भी एक वीडियो को लेकर सवाल उठे थे। कहा गया कि वो एआई से बना है, यहाँ तक कि उंगलियों की गिनती तक पर बहस छिड़ गई थी। ऐसे में इस नए वीडियो के जरिए नेतन्याहू ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी साबित की, बल्कि दुनिया को साफ संदेश दिया कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और ईरान के खिलाफ जंग में डटे हुए हैं। I'm alive, and you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update
on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Operation Rising Lion is designed to remove the existential threats posed by the Ayatollah regime, the regime that has waged war against America and Israel and the people of Iran for 47 years. It chants death to America, death to Israel, and it delivers death to its own people. जंग के नतीजे पर नेतन्याहू का बड़ा दावा। नेतन्याहू ने सिर्फ अपनी मौजूदगी ही नहीं दिखाई, बल्कि जंग के हालात पर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी है और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इजराइल का दावा है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन सिस्टम और सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उसकी सैन्य क्षमता तेजी से कमजोर हो रही है। Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded and will be destroyed. Hundreds of their launchers have been destroyed, their stockpiles of missiles are being hit hard, and so are the industries that produce them. That's important. In Rising Lion, we destroyed missiles and we destroyed a lot of the nuclear infrastructure. But what we're destroying now are the factories that produce the components to make these missiles and to make the nuclear weapons that they're trying to produce. We're wiping out their industrial base in a way that we didn't do before. Iran's air defenses have been rendered useless. Their navy is lying at the bottom of the sea. Today we hit the other part of their navy in the Caspian Sea. Their air force is nearly destroyed. Iran's command and control structure is in utter chaos. And I can tell you that there's still more work to do, and we're going to do it. हॉर्मूज पर इजराइल की चेतावनी। जंग का असर अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों तक पहुंच गया है। हॉर्मूज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, अब तनाव का नया केंद्र बन गया है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी देकर दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है, और अगर उसके पास परमाणु हथियार होते तो खतरा और भी बड़ा हो सकता था। The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. Israel is helping in its own way, and intel and other means, the American effort to open the Straits of Hormuz rather. But I want to ask you to imagine how the Ayatollah regime would be able to blackmail the entire world if they had ballistic missiles with nuclear warheads. Just imagine what they would do. Look at what they're doing now and imagine what they would do if they had ballistic missiles, international range ballistic missiles, and nuclear-tipped warheads. Just imagine what a great threat that would be. So today, Israel and the United States are protecting America, Israel, the entire Middle East, but I venture to say the entire world. मिडिल ईस्ट में हालात फिलहाल बेहद नाजुक बने हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच टकराव थमने के कोई भी संकेत नहीं दिखाई दे रहे। आने वाले दिनों में ये जंग और तेज हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी सैन्य ताकत और रणनीति को और आक्रामक बना रहे हैं। हॉर्मूज जैसे अहम समुद्री रास्तों पर बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में नजर अब इस बात पर है कि क्या कूटनीति इस आग को थाम पाएगी या फिर संघर्ष अब तक के सबसे बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल जाएगा।